New Hope TV, your encounter with God. Don't live your life just like that. Say, आज का दिन है, कल किसने देखा है? Sir, you have to answer a God in heaven. आपको स्वर्ग में परमेश्वर का जवाब देना पड़ेगा। The sixth sign, तो छठवां चिन्ह Matthew 24 verses 10. मत्ती का 24वां अध्याय उसके 10वें वचन में See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। And then many will be offended, तो बहुत से ठेस खाएंगे, will betray one another, and will hate one another. एक दूसरे को धोखा देंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे। And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. The love of many will grow cold is a sign of the end times. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये चिन्ह, ये निशानी है अंतिम समय की। People will forget, people will be, in other words, people will be ungrateful. और लोग भूल जाएंगे, दूसरे शब्दों में लोग धन्यवाद प्रकट नहीं करेंगे। The same person that did so much for you, just because of one mistake, you forget that person. Has it happened anywhere? और वही व्यक्ति आपके लिए जिसने बहुत कुछ किया, लेकिन एक गलती हुई उससे और आप सब कुछ भूल गए उसके बारे में। So many things. कई सारी चीजें। Children बच्चे will not look after their parents. अपने माता पिता की परवाह नहीं करेंगे। Love growing cold. प्यार जो है उनमें का ठंडा पड़ रहा है। बोले मेरे बड़े भाई को या छोटी बहन को थोड़ा सा लंबा वाला चेन मिला, मेरे को छोटा वाला मिला। अच्छा, तो अपने मम्मी डैडी को चेन से नापता रहे। बोले उसको 2 तोला ज्यादा मिला, मेरे को 1 तोला कम मिला। बोले मम्मा तेरा तोला नहीं चाहिए, तेरा सोना नहीं चाहिए, सिर्फ हाथ रख दे, यीशु के नाम से सब आ जाएगा। That's the people God wants. ऐसे लोग जिनको परमेश्वर चाहता है। Love will grow cold. प्यार ठंडा पड़ जाएगा। I've been to funerals. और मैं गया हूं ऐसे अंतिम संस्कार की where प्रक्रिया में, people are in 2 parties. जहां पर लोग 2 पार्टियों में बदल जाते The हैं। father's body has not entered the grave. They are saying tomorrow I will see you in court. I said बाप का बॉडी नीचे नहीं गया, तू क्या झगड़ता रे? I told them on their face, they hate me for it. Saying you are very proud. I said yes, I will stand for the man in the grave. I said you didn't earn these flats, you didn't earn this property, and you fighting. और तुमने ये सारा फ्लैट जो है, ये सारी संपत्ति तुमने खुद नहीं कमाई अपने बलबूते से। Pastor, but you should see the truth. I said the truth is it does not belong to you, it belongs to this man in the grave. सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें जो है आपकी नहीं है, लेकिन उस आदमी की है जो अभी कब्र में गया है। The love of many will grow cold. बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। The sign of the end times. अंतिम समय की निशानी। The wife will say, oh, now I don't have feelings for my husband. Really? Feelings, huh? और पत्नी कहेगी कि अब मेरे अंदर मेरे पति के लिए कुछ ऐसी महसूस करनी नहीं The man होगी। says, now I only have feelings for Sheila. I don't have feelings for you. Love has grown cold. प्यार जो है ठंडा पड़ गया है। The sign of the end times. अंतिम समय की निशानी। For little things, छोटी छोटी चीजों में people will move away. और लोग जो है दूर हट जाएंगे। And earlier, और पहले you could pull somebody's hair, beat up each other, and afterwards say, चल जेवण वाड़ा था। पहले आप बाल खींचते थे, एक दूसरे को पीटते थे, फिर आप कहते थे चलो खाना डालो खाने के लिए। Not only for the family members, but even for one another. सिर्फ परिवार के लोगों के लिए नहीं, हम देखते हैं That's कि एक दूसरे के प्रति भी। why people cannot pray for one another. They only, you post a thing on WhatsApp nowadays, somebody is sick, please pray. So you know what they will do? आप जानते हैं लोग क्या करेंगे? वो ऐसा भेजेंगे। You are roaming in the mall and you are saying all this, you are और आप पूरे sending. मॉल में घूम रहे हो और आप लोगों को ये सब भेज रहे हैं। Don't worry, I am praying for you. WhatsApp वाले लोग भी बहुत सारे हाथ डाले हैं, सब लोग ऐसे सब भेजते हैं। Nobody prays. कोई प्रार्थना नहीं करता। But when their time comes, लेकिन जब उनका समय आता है, Pastor, पासवान जी get up. उठ जाओ। क्यों रे? क्यों उठूं? तू जब ऐसे ठेंगा ठेंगा भेजता था, मॉल में घूमता था और लोगों को झूठे बोलता था, डोंट वरी सिस्टर, आई एम प्रेइंग फॉर यू। फिक्र मत करो बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और बेचारा ऊपर गया, बोले प्रभु की मर्जी हो गई। झूठा, बंद करो ये सब नाटक। When you cannot pray for your own people, जब आप अपने सगे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, your love has grown cold. आपका प्यार ठंडा पड़ चुका है। If you cannot come for intercession, you see what is intercession? Intercession is saying, God, I know you will bless me, but I pray for this man. और Hallelujah. आप जानते हैं प्रार्थना विनती करना क्या होता है? प्रार्थना विनती करने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर, मैं जानता तू मुझे आशीष देगा, लेकिन मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। What will motivate you to serve God is not anything else but the love of God. क्या चीज आपको प्रेरणा देगी परमेश्वर की सेवा करने के लिए? कुछ और चीज नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर
परमेश्वर का प्यार है। The love of God will grow cold. Love for one another will grow cold. This is a sign of the end times. और देखिए एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। ये चिन्ह है, निशानी है अंतिम समय की। For little things, people leave the ministry, leave the churches nowadays, go hunting here and there. After 2 years, they come back. Hello. और छोटी छोटी बातों में देखिए लोग जो है ठेस मानकर गली से छोड़ के चले जाते हैं, सेवकाई से छोड़ के चले जाते हैं, और यहाँ वहाँ भटकते हैं, फिर 2 साल के बाद वापस आते हैं। Love has grown cold. उनका प्यार ठंडा पड़ चुका है। Sign of the end times. अंतिम समय का चिन्ह। I want to warn you. मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। Whenever I conduct a marriage, जब कभी शादी का कार्य भाई संपन्न करते हैं किसी का, I tell people, लोगों से कहते हैं ये सब ठीक है, चमक दमक, लाइट्स, रॉकेट्स सब ठीक है। बोले कैसा लगा खाना? मैं बोला खाना रोज खाता हूं मैं। It's not that your food is good and your food is bad. All food is good. ऐसा नहीं कि आपका खाना अच्छा है, इनका खाना But बुरा what you नहीं। need to do is this. क्या आपको करने की जरूरत है वो ये है, Romans 5:5. रोमियो के पत्री 5वां अध्याय 5वां The वचन। love of God has been poured into our heart by the Holy Spirit. What makes a man come back to his wife? It's not her beauty, because there are some other beautiful women, shaky women over there. What makes a man to come back to his wife is the love of God. Hallelujah. किस बात से एक मर्द जो है अपनी पत्नी के वापस लौट आता है? खूबसूरती की वजह से नहीं, क्योंकि बाहर बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन किस बात से एक मर्द अपनी पत्नी के पास वापस लौट आता है? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम उसमें डाला जाता है। Something tells him, कुछ तो उससे कहता है this is your wife, ये तुम्हारी पत्नी है, this is your husband. ये तुम्हारा पति है, Forgive and forget. क्षमा करो, भूल जाओ, Come back. वापस लौट आओ। Lift your hand and say the love of God. अपने हाथों में परमेश्वर का प्यार। What makes a child, a son or daughter honor his poor, old, broken parents is the love of God. क्या चीज है कि जो एक बच्चे को, एक बेटे, Open एक your बेटी को eyes. अपने टूटे हुए गरीब माता पिता का आदर करने के लिए प्रेरणा देता है? वो है परमेश्वर का प्रेम। The man is shaking like this. वो व्यक्ति हिल रहा है ऐसे, He cannot even walk. वो चल भी नहीं सकता। But what makes the children honor that person लेकिन क्या बात वो एक बच्चे को जो है उस व्यक्ति का आदर करने के लिए प्रेरित करती है? is the love of God. वो है परमेश्वर का प्यार। How does it come? कैसे ये आता है? When you fellowship with the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी करते हैं। In the last days, अंतिम दिनों में people will not fellowship with the Holy Spirit. लोग पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी नहीं करेंगे। Just pray for my healing, that's all. बस मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना करें, बस काफी है। हाथ ठीक हो जाएगा, सड़ जाएगा नरक में। Am I preaching the gospel? क्या सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं? Today you must say, oh God, आज आपको कहना चाहिए परमेश्वर fill my heart with your love. मेरे दिल को भर दे तेरे प्रेम से। Suddenly there will be healing in your family. अचानक आपके परिवार में एक चंगाई आएगी। Suddenly there will be healing, restoration in your home. अचानक आपके घर में चंगाई पुनर्स्थापना आएगी। What makes a mother-in-law see her daughter-in-law as a daughter is not the gold she brought, it's the love of God. Can I have a good क्या amen? चीज एक सासू माँ को अपनी बहू को बहू जैसी नहीं है, लेकिन बेटी जैसी देखने के लिए प्रेरित करती है? वो उसका लाया हुआ सोना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्यार है। I want all the men. और सभी मर्दों से मैं कहना चाहता हूँ, Once a week you must fast for your family. All the men shouted hallelujah. हफ्ते में एक दिन तो आपको अपने परिवार के लिए उपवास करना चाहिए। I'm glad when I said men, even boys shouted. No, और good, बड़ी good. खुशी You हुई are a कि जब man. मैंने कहा मर्द तो You are a आप man. लड़के लोग भी You're a चिल्लाए। man. If a man can stand up and say before God and say, Lord, I love my family, I love my wife, I love my mother, I love my sister, daughter, whoever, he's a man. Maybe you are a poor guy, you have no money, but you are a man. The love of God परमेश्वर का प्रेम will grow cold in people. लोगों में ठंडा पड़ जाएगा। But there are people who are receiving the word. लेकिन ऐसे भी लोग जो वचन ग्रहण कर रहे हैं। And I pray that your love will demonstrate the power of God like never before. Lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. और आप परमेश्वर का प्रेम ऐसा दिखाने जा रहे हैं कि कभी ठंडा नहीं पड़ा है, कभी पहले जैसा नहीं हुआ है। Your family will go for generations. आपका परिवार पीढ़ी पीढ़ी तक जाएगा। सारे नौजवानों से कहना चाहता हूं मैं, तुम्हारे खूबसूरत बाल या खूबसूरत चमड़ी के वजह से तुम्हारा घर नहीं बसेगा, लेकिन खुदा के आशीष से तुम्हारा घर बसेगा। So don't worry. फिक्र मत करें। God will give you a life partner. I prophesy this in Jesus' name. भविष्यवाणी करते हैं परमेश्वर आपको जीवन साथी देगा यीशु के नाम Those में। who are looking, those who are not married, those who are praying for your children, lift your hands as I speak it. God is doing it right now. Receive it in Jesus' जो अपने name. बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें, परमेश्वर से कर रहा है यीशु के नाम में। Pastor, what are you saying? पासवान जी आप क्या बोल रहे हैं? When a man of God speaks, जब परमेश्वर वचन बोलता है, there is power in that word. उस वचन में सामर्थ होता You है। are believing what God is speaking right आप now. विश्वास करें जो परमेश्वर हमसे बोल रहा है इस वक्त। Say, Lord, build my home.
Say, Lord, build my family. बोलिए प्रभु मेरा घर बना, मेरा Raise your परिवार hand, बना। raise your hand, raise your hand. अपने हाथ उठाए उठाए अपने हाथों को। Begin to pray for your family right now. अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करें इस Say, वक्त। walls of division, misunderstanding in my family, break in Jesus' name. बंटवारे की दीवार, गलत Yes. फहमी की दीवार मेरे परिवार में से टूट जाए यीशु के नाम में। Confusion, any spirit of ill will, leave my family now. गड़बड़ी की आत्मा, मतभेद लाने वाली आत्मा मेरे परिवार से निकल जाए In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में। Lift your hand and begin to बोलिए pray. अपने हाथ में प्रार्थना करना शुरू करें, शुरू करें। Say, every wall बोले हर एक दीवार hindering my मेरी progress, प्रगति को रोकने वाली, hindering the progress of my family, मेरे परिवार की प्रगति को रोकती है, be cut off in Jesus' name. हट डाली जाए यीशु के नाम में। Lift your hand and say, Holy Spirit, अपने हाथों का बोले पवित्र आत्मा fill my heart with your love. मेरे दिल को भर दे तेरे प्यार से In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। The seventh sign, सातवां चिन्ह Matthew 24, verse 13. मत्ती का 24वां अध्याय 13वां वचन। But he who endures to the end shall be saved. Verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. मगर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सारे राष्ट्रों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। The gospel must be preached. सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। The gospel is this, सुसमाचार यह है that Jesus Christ came on this earth as a perfect man. और यीशु मसीह इस धरती पर आए एक सिद्ध मनुष्य के रूप He में lived a holy life. उन्हें पवित्र जीवन जिया He was born of a virgin called Mary. और एक कुंवारी जिनका नाम मरियम था उन्होंने जन्म लिया। He died for you and for me. आपके मेरे खातिर वो मरे, He died, वो मरा, but the grave could not hold him. लेकिन कब्र उसे थाम कर नहीं रख He सकी। rose again on the third day. तीसरे फिर से वो जिंदा हुआ, He is alive forevermore. वो जिंदा है हमेशा के लिए। And the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है He's coming soon. वो वापस आ रहा है। One day, एक दिन you will stand in front of the Lord आप प्रभु के सामने खड़े होंगे and you will say, और आप कहेंगे Who are you, God? हे परमेश्वर तू कौन है? And then the Lord will say, और फिर प्रभु कहेगा You remember that skinny man और तुम्हें याद है वो व्यक्ति in the black suit? और काले सूट में He told you about me, मेरे बारे में तुमको उन्होंने उससे बताया था, but you are too big for it. लेकिन तुम इसे समझने बहुत बड़े थे। He says, Move on now. अब हट जाओ। I want to tell you. मैं कहना चाहता हूँ Jesus said, Those who believe in me, यीशु ने कहा जो मुझ में विश्वास their करेंगे sins will be forgiven. उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। How many of you listening right now? कि जो सुन रहे हैं इस वक्त, Pastor, do you believe in healing? पासवान जी क्या आप चंगाई में विश्वास करते हैं? Yes. हाँ, हाँ। But you still can go in hell. लेकिन फिर भी आप नरक में जा सकते But हैं। when your soul is saved, लेकिन जब आपका आत्मा बच जाता है you will have eternal life. आपके पास अनंत जीवन होगा। Your blood is not on my hands. आपका लहू, आपका खून मेरे हाथों में नहीं है, These are the signs of the end times. लेकिन अंतिम समय की यही निशानी है। The Holy Spirit will honor me. पवित्र आत्मा मेरा आदर करेगा। Repent, turn away from your sins. पश्चाताप करें, अपने पापों से मुड़ जाएं, Surrender your life to अपनी Jesus. जिंदगी यीशु के हवाले करें। Somebody say, I receive this word. कोई कहे मैं वचन को ग्रहण करता The हूँ। Bible says, बाइबल कहती है God so loved the world that He gave His only Son. परमेश्वर ने जगत से इतना महान प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। Pastor, why are you teaching this? अब पासवान जी क्यों आप ये प्रचार कर रहे हैं? The Bible says, बाइबल कहती है believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, The end is close. अंत नजदीक है। Secondly, दूसरी बात, if you are saved already, अगर आप पहले से उद्धार पा चुके हैं, are you concerned about your family? लेकिन क्या आप अपने परिवार के बारे में फिक्रमंद हैं? I thank God for mothers and fathers who keep gold and money for their children, and that's very good. Please do it. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन माता पिताओं के लिए जो फिक्रमंद होते हैं अपने बच्चों के लिए और उनके लिए सोना चांदी जेवरात रख के जाते हैं। अच्छा है, करिए। The Bible says a good man leaves something for his children and for his children's children. और बाइबल ऐसा कहती है कि भला मनुष्य जो होता है, अच्छा मनुष्य जो होता है, वो अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों, नाती पोतों के लिए भी संपत्ति छोड़ जाता But है। the best thing you can do, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज आप कर सकते हैं, you can pray for their salvation. उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। When the rapture will happen, और जब बादलों पर उठा लिया जाने का कार्य होगा, it will happen soon. और जल्दी हो जाएगा, You will not curse me. आप शाप नहीं देंगे मुझ पर, You will not fight with me in saying, Pastor, you didn't tell us. आप मुझसे लड़ते झगड़ते वैसा नहीं कहेंगे कि पासवान जी आपने मुझे नहीं बताया। Some of you आप में से कुछ लोग will remember my words. आप मेरे शब्दों को याद रखेंगे The rest of you और बाकी बचे हुए लोग will be there. वहां पहुंच जाएंगे।